Now students, we will see the next portion, that is multiplication and division. So students, first of all, let us see what happens when multiplier is 10, 100, 1000 and so on. Okay. So students, I am going to take some examples here. So 7.2 into 100. Suppose second example is 0.72 into 10. Third example is 7.2 into 10,000. Say, okay. Here students, first of all, if the multiplier is 10, 100, 1000 or so on, then first thing we should do is we have to check how many zeros are there, right? In first example, the multiplier is 100, that means 2 zeros are there. So students, the decimal point will shift 2 places to its right when multiplication is there. Keep it in your mind always. So you can see here decimal point is there 7.2. So decimal point 2 places means 2 is there, right? And if I consider that 7.2 is 7.20, then 0 will be there, and after that decimal point will shift here. It's very easy. So students, यहाँ पर जो decimal point था वो 2 डिजिट इधर गया है, right? You can say यहाँ पर था decimal point 7.2 में, right? वो कहाँ पर गया है? यहाँ से 2 places right में, 2 places right में गया है, right? So it becomes 720.0. ये यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 दे सकते हैं. So you can write 720.0 or you can say 720, no matter, one and the same thing. In second example, you can see that decimal point is here and the multiplier is 10, that means only 1 0 is there. So decimal point will shift here. So 07.2, 07, यहाँ पर आएगा decimal point 0.2. That means students, it is nothing but 07 means 7. No need to write 07 because before decimal point 07 becomes 7, right? So you can say it is 7.2. In third example, you can see 7.2 into 10,000. In 10,000, 4 zeros are there. So students, what will be here? This decimal point, we need 4 digits. Only 1 digit is there. 2. Okay, so we can take 3 digits once again. So from 2, we have taken 3 zeros, means 1, 2, 3, 4. After decimal point 0, or you can say only 72,000, right? So when the multiplier is 10, 100, 1000, 10,000 and so on, so it's very easy that we have to check for the number of zeros first of all, and after that we should shift that decimal point to its right. जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट्स उस डेसिमल पॉइंट को हम कहां पर शिफ्ट करेंगे? राइट में शिफ्ट करेंगे. सो वेरी easy now. Let us take some example. 73.08 into अगर 10 है तो क्या हो जाएगा? ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर चले जाएगा. So it will become 730.8, right? अगर ये ही अगर मैंने ले लिया 730.8 into 100 अगर मैंने और ले लिया तो what will happen? Into
ये 2 जीरो है 100 में आफ्टर 1, सो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट जाएगा, मगर एक ही डिजिट है तो जीरो लगाना पड़ेगा, सो इट विल बिकम 73,080. पॉइंट जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. एंड इफ यू विल राइट देन इट इज आल्सो ओके, नो मैटर. वन एग्जांपल हियर 7.308 इनटू अगर सिर्फ 10 है या 100 है सपोज, then it will be 730.8 because ये जो है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, राइट. So it will be 730.8. Now students, I hope you understood all this. So let us move for the further. Now students, if in multiplication the decimal is multiplied with whole number or decimal, what will happen? So students, when I am going to take some examples, let us take 53 into whole number 4. अगर मैंने 4 ले लिया तो ये तो बहुत इजी है. 53 मीन्स 53 अपॉन 1 होता है डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज रहता है. 4 मीन्स 4 अपॉन 1 होता है, राइट. अगर ये होल नंबर ले लिया मैंने 4 को तो 53 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12, कैरी 1, 4 5 20, 21 मीन्स 212. 1 into 1, denominator into denominator, 1 will be there. So we know that 212 upon 1 is nothing but 212. So it's very easy. Now students, if I take another example here with decimals से अगर मल्टीप्लाई करना है 53 into 0.004 अगर है, so what will we do? In the similar way students, let us see. 53 means 53 by 1 into, ये देखो स्टूडेंट्स अभी ये टेंस स्टार्ट हो गया. टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 1000. ये थाउजेंड्स प्लेस है, TH थाउजेंड्स प्लेस है, राइट. तो कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 1000. So what will be it? 53 into 4, numerator into numerator, 212, and here 1 into 1000, 1000 will be there. Now students, we know it very well that अगर हम डिवाइड करते हैं तो अब क्या होगा? मल्टीप्लाई के वक्त हमने देखा, मल्टीप्लाई का मैंने रूल बताया आपको स्टूडेंट्स. ये फिगर हमेशा ध्यान में रखना. अगर ये डेसिमल पॉइंट है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राइट में जाता है इन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कहां पर जाता है डेसिमल पॉइंट? राइट में, यहां से शिफ्ट होकर. बट यहां पर डिवाइड है स्टूडेंट्स 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां पर 212 है. नेक्स्ट पार्ट अपना वही है, डिवीजन. सो स्टूडेंट्स, सपोज मैंने ये अगर बोल दिया कि 212 है और डिवाइडेड बाय कितना है स्टूडेंट्स? 1000 है. सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट 212 मींस 212.0 ये होगा, बराबर है. 212 इज नथिंग बट 212.0. सो डिवीजन के वक्त भी वही देखना है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर 1. 3 zeros आर देयर. मगर अब इस वक्त ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट में आएगा. मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट राइट में जाएगा, मगर वही डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में कब आएगा? व्हेन डिवीजन विल बी देयर. ये आपको याद रखने के लिए आप ये आपके नोटबुक में लिख के रख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये 3 डिजिट्स 1 2 3 तो यहां पर आएगा, तो नेचुरली इट विल बी 0.212. हम ऐसा इसको बोल सकते थे कि यहां पर पॉइंट अगर आएगा डेसिमल तो 0.212, मगर
0.212 की जगह हम 0.212 लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर ये 2 1 2 1 2 3 डिजिट को छोड़ के ये डेसिमल पॉइंट और ये 0 हम दे सकते हैं। 0.212 इज नथिंग बट 0.212। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी अगर होल नंबर को हमने होल नंबर से या डेसिमल से अगर मल्टीप्लाई किया, ये होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल से, तो सेम प्रोसेस अगर हम करते हैं कोई भी नंबर के साथ तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस थिंग्स डेसिमल्स वेरी वेरी इजीली। नाउ स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन के इसमें मैंने डिवीजन का पार्ट भी आपको बताया। स्टिल वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स हियर, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। सो अगर ये होल नंबर है 319, ये डिवाइडेड बाय अगर 10 डिवाइडेड बाय 10, तो स्टूडेंट्स ये 319 डिवाइडेड बाय 10 अगर है तो ये इसमें भी 1 0 है, 1 0 है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक डिजिट छोड़ के पहले लेफ्ट में आना पड़ेगा, राइट। सो 319 मीन्स 319.0 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा होता है, ऐसा सोचना पड़ेगा। और इसका मतलब स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इधर आएगा, दैट मीन्स 31.9 डिवाइडेड बाय 1 रहेगा तो 31.9 विल बी द आंसर। सो इन दिस वे वी कैन ट्राई फॉर एनी नंबर। अगर ये 3.19 है, सपोज डिवाइडेड बाय 1000 है, डेसिमल पॉइंट है, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? सो वंस अगेन इट इज वेरी इजी, लेट अस सी 3.19 डिवाइडेड बाय अगर 1000 है तो ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट आएगा, 3 डिजिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिजिट ही नहीं है 3 को छोड़ के, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिए, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 3 डिजिट्स वी नीड। यहाँ पर कितने हैं डिजिट, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट है, तो 2 3 हम ऐसा सोच सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ये डेसिमल पॉइंट ये 3 डिजिट, अभी 3 डिजिट बन गया, देखो 1 2 3, और बाद में यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसा लिख पाएंगे, चलो एक स्टेप में इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। तो ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर ये 0 ऐसे लिख दिया मैंने, पॉइंट 00319, ये पूरा आखिरी तक हमको लिखना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद में 0 तो रहते ही है, पता है वो लिखने की जरूरत नहीं, मगर अप टू द डिजिट बिकॉज 10 100 1000 10,000 lakhs प्लस जो है वो वहाँ तक तो हमको लिखना ही पड़ेगा, जो अगर 0 को छोड़ के अगर कोई डिजिट है तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स होल नंबर्स इसको भी देखना जरूरी है। सो आई एम गोइंग टू टेक नाउ स्टूडेंट्स आई हैव written here some examples which are related to division of whole numbers or divisions, decimals, sorry. Now students the first is 57 divided by 90. So अगर हम इसके स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपरली तो क्या हो गया, 57 is nothing but 57 divided by 1, यानी by 1, 57 is nothing but 57 upon 1 divided by 19 is nothing but 19 upon 1. So students, in earlier lesson fractions we know how to calculate such things. So 57 upon 1 is there, no matter. Now multiplicative inverse will be there, तो ये डिवीजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो ये जो लैटर जो पार्ट है आफ्टर डिवीजन का वो क्या बन जाता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। सो इट विल बी 1 upon 19. सो स्टूडेंट्स ये न्यूमरेटर है अभी और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 और 19. So student 19 ones are 19, 19 3s are 57,
right? So 3 into 1 3 or 1 into 1 numerator into numerator 3 denominator into denominator 1 1s are 1 is nothing but 3. एक्चुअल में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो 57 डिवाइडेड बाय 19 57 डिवाइडेड बाय 19 हम 3 डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मगर ये स्टेपिंग्स आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है. नाउ इट विल बी मच बेनिफिशियल हियर. ओके, लेट अस सी. 57 means 57 divided by 1, ये डिवाइडेड बाय 1.9 है स्टूडेंट्स. अब 1.9 इज नथिंग बट, देखो 1.9 है तो हम क्या लिख सकते हैं 19/10 बराबर है 19/10 हम लिख सकते हैं. एक मिनट स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं मैं what I have done here. 1.9 डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो है स्टूडेंट्स 1, तो मैंने इसको 19 लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 10. क्यों? क्योंकि 10 में कितने जीरो होते हैं 1, तो 9 के पहले वो डेसिमल पॉइंट आएगा, क्योंकि 19 इज नथिंग बट 19.0, ये तो आपको पता है. सो उसकी आपको बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो ये 19/10 is nothing but 1.9. So students, यहाँ पर मैंने वो लिखने से क्या फर्क हुआ देखो. अभी 1.9 की जगह पर हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट डायरेक्टली 19/10. सो सेम स्टेप्स 57/1 इंटू हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर न्यूमरेटर में और 19 नीचे. So once again 19 1s are 19, 19 3s are 57. Now 3 into 10 30. 1 into 1 1 means 30 will be the answer, right? Now students here 0.57 है, कितने डिजिट्स है स्टूडेंट्स 2 डिजिट है, तो इसका मतलब ये उधर जाने के लिए 57/100 करते हैं. 57/100 तो हमको क्या मिल जाएगा 0.57. तो इसको हमने पहले कन्वर्ट कर दिया, राइट? Later on divided by 1.9, we know it very well now, 19/10, right? Now students 57/100 as it is into 10 न्यूमरेटर में जाएगा और 19 डिनोमिनेटर में, so it will be 10/19. Once again 19 1s are 19, 19 3s are 57, 110 cancel, numerator and denominator 10 1s are 10, 10 10s are 100, one and the same. 3 into 1 means 3, 10 into 1 10, and we know students 3/10 का मतलब क्या होता है 3, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट means 0.3. नेक्स्ट स्टूडेंट 5.7 है, इट इज नथिंग बट 57/10 डिवाइडेड बाय 0.19 है स्टूडेंट्स, तो ये 19/100 हो जाएगा. 0.19 2 digits means 19 divided by 100. आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 digit means 57 अगर हम करते हैं तो डिवाइडेड बाय 10, सो इक्वल्स टू 57/10 इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 100 न्यूमरेटर में चले जाएगा और 19 डिनोमिनेटर में. 19 1s are 19, 19 3s are 57, so 110 cancel. 3 into 10 30, न्यूमरेटर पार्ट है ये हमारा, and in denominator 1 into 1 means 30/1 means 30. Now the last one very easy, 0.57. Similarly 57/100 will be there, divided by 0.19 means 19/100. Now 57/100 as it is. अभी लेटर पार्ट को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेंगे 100/19. सो 100 1s are 100 के दो जीरो कैंसिल हुए. 19 1s are 19, 19 3s are 57, so 3 into 1 3 numerator part, 1 into 1 denominator part means 3/1 means 3.
So students, I hope you understood the multiplication and division part of the decimals. So students, these two things are very important things. In multiplication what happens, the decimal point कहाँ पर शिफ्ट होता है, राइट में, और डिवीजन पार्ट में लेफ्ट में शिफ्ट होता है. So students, see you in next period. Bye bye.